We are starting the fresh chapter, which is called The Law of Non-Resistance. बहुत empowering chapter है ये. Okay, so the law of non-resistance is a beautiful new chapter that we are doing. इसका मतलब है anything that you want to be, do and have, you can achieve. There is no resistance because resistance human mind से create होता है. जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि इंसान के दिमाग में दो तरह की चीजें होती है, एक evil होता है और एक एंजल एंड डेविल, जो हमने सुना था बचपन में, एंजल एंड डेविल. तो फिर देखो, मैं एंजल को फीड कर रही हूँ कि मैं डेविल को फीड कर रही हूँ. क्या मेरा ये थॉट एंजलिक है कि डेविलिश है ना? गुड एंड बैड जिसको बोलते हैं, यिन एंड यांग, इस तरह. तो ये सारा ये चीजें हमारे लाइफ में होती है. लेकिन इन द लॉ ऑफ द यूनिवर्स देयर इज नॉन रेजिस्टेंस. दैट मीन्स जो चीज आप चाहो वो बिना रेजिस्टेंस के आप प्राप्त कर सकते हो, अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो. तो हम पढ़ते हैं, आई एम श्योर इसमें बहुत अच्छे असाइनमेंट्स वगैरह होंगे एंड बहुत अच्छे एफर्मेशंस होंगे, लेकिन हमको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. इस किताब में मतलब मैं तो एक एक शब्द पढ़ती हूँ, उसके बाद भी मैं एक दो बार मुझे पढ़ना पड़ता है सेशन होने के बाद. मतलब तब भी पढ़ना पड़ता है कि कहीं कोई लाइन तो नहीं छूट गई है. और जब मैं कल वाला भी चैप्टर, कल तो हमको एक एफर्मेशन निकालना था ना पूरे चैप्टर से, तो वो तो हमको पढ़ना ही था. तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये वाला तो एक्सपीरियंस ही मुझे याद नहीं है, मतलब इसमें कुछ था. तो इस तरह से हमको बहुत फोकस के साथ ये किताब पढ़नी है. छोटे चैप्टर्स हैं बट एक लाइन भी हम स्किप नहीं कर सकते. तो हम पढ़ते हैं. कौन पढ़ रहा है आज? Lakshmi, and I think it's your debut reading today. Yes, ma'am, debut reading. Congratulations. Best Thank wish. you. New start, new beginning. Yes, ma'am. हाँ जी. Okay. The law of non-resistance. Quote, resist not evil. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Unquote. Nothing on earth can resist an absolutely non-resistant person. The Chinese say that water is the most powerful element because it is perfectly non-resistant. It can wear away a rock and sweep all before it. Jesus Christ said, resist not evil. For he knew in reality there is no evil, therefore nothing to resist. Evil has come of man's vain imagination or a belief in two powers, good and evil. There is an old legend that Adam and Eve ate of Maya, the tree of illusion, and saw two powers instead of one power, God. Therefore, evil is a false law man has made for himself through psychoma or soul sleep. Soul sleep means that man's soul has been hypnotized by the race belief bracket of sin, sickness and death, etc. bracket close, which is carnal or mortal thought, and his affairs have outpictured his illusions. We have read in a preceding chapter that man's soul is his subconscious mind, and whatever he feels deeply, good or bad, is outpictured by that faithful servant. His body and affairs show forth what he has been picturing. The sick man has pictured sickness, the poor man poverty, the rich man wealth. People often say, why does a little child attract illness when it is too young even to know what it means? Unquote. I answer that children are sensitive and receptive to the thoughts of others about them and often outpicture the fears of their parents. I heard a metaphysician once say, if you do not run your subconscious mind yourself, someone else will run it for you. Yeah. One. Mother, So let us hmm, just understand जितना ये लिखा हुआ है, because it's a very biblical language.
है ना, बिकॉज फ्लोरेंस कॉवलशेन वाज फॉलोइंग द बाइबल टू द कोर, एंड बाइबल में मतलब वैसे लिखे हुए हैं, मतलब उनको डिकोड करना पड़ता है ना, जैसे हर जगह लिखा हुआ है बाइबल में दैट इन योर लाइफ यू हैव टू टर्न वाटर टू वाइन, सो वाइन वाज कॉनोटेटेड एज समथिंग वेरी हीलिंग एंड थेराप्यूटिक, तो उसमें लिखा हुआ है कि हर पानी को वाइन में आप कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हो, डिग योर ओन डिचेस। अब हमारे हिसाब से गड्ढा खोदना अच्छा नहीं समझा जाता है ना, डिग योर ओन डिचेस मतलब अपना पानी खुद निकालो, है ना, डिचेस मतलब जहां पे सूखा पड़ा है, उसमें लिखा हुआ था कि जहां पे सूखा पड़ा हुआ है वहां पे भी डिच, वहां पे भी आप अपना गड्ढा खोदो, उसमें से पानी निकल जाएगा, मतलब आप कहीं से भी अपने लिए कुछ कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना, इस तरह से। सो अभी तक जो उन्होंने ये लिखा हुआ है, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब ह्यूमन रेस आई थी तो गुड एंड इविल उनके पास था, धीरे धीरे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया वो अपने इविल को फीड करता गया, नेगेटिव चीजें, तो उन्होंने बोला है कि जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट आप अगर नेगेटिव, जैसे अगर कोई सिकनेस के बारे में ही अगर बात करते हो, सिकनेस के बारे में सोचते हो, उसको गूगल कर रहे हो, सपोज कोई बीमार हो गया है, उनको पता लगा उनको ये नाम की कोई प्रॉब्लम आई है, अब वो उसके सिम्टम्स को गूगल करेगा, उसके बारे में बात करेगा, उसको इधर उधर देखेगा, उसी के बारे में सोचेगा मुझे ये सिकनेस हो गई, उस जब दवा लेगा तो सिकनेस के बारे में सोचेगा दवा की, मुझे डायबिटीज है ना, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, वो ये नहीं देखेगा कि ये हीलिंग पोशन है, ये हीलिंग ड्रग है मेरा, है ना, एंड थैंक यू फॉर हीलिंग, उस वाले एक्सप्रेशन के साथ अगर हम लेते हैं अपनी कोई भी दवा तो हमारी बीमारी वैसे ही ठीक होने लग जाती है ना, किस किस सेंस में हम ले रहे हैं, क्या हमारा मेंटल बिलीफ है, हमारे वर्ड्स, हमारे थॉट प्रोसेसेस वो इवल और गुड होते हैं। इन द रेल्म ऑफ गॉड बिल्कुल नॉन रेजिस्टेंस है सब कुछ, आपने मन में सोचा और वो हो गया, दिस दिस काइंड ऑफ दिस इज अ ट्रुथ। Okay. Now, all the blockages that we have are there in our mind. It says that the sick man ने picture की है sickness, उसने the poor man ने poverty, इसीलिए कहते हैं ना रिच मैन रिच ही होते जाते हैं, पुअर मैन पुअर ही होते जाते हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम इसी में रहते हैं कि आज का खाना कहाँ से आएगा, कल का खाना कहाँ से आएगा, अभी बहुत सर्दी पड़ रही है, काश कोई कोट दे दे, इस तरह की चीजें, है ना, मतलब इस कुछ वो दे दे, जैसे द गाइज हु आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग लाइक इन इंडिया देर इज द कस्टम ऑफ डाउरी एंड whatever, सो इफ द मैन कॉन्स्टेंटली थिंक्स दैट अब इस लड़की से शादी कर लिए, पैसे वाली फैमिली से आई है, तो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, अब दिवाली पे तो इतना मिलना बचा ही है ना, फिर द गाय कैन से दैट व्हाई डोंट यू आस्क योर पेरेंट्स टू गिव अस अ न्यू कार, लाइक दैट, एंड दे आर रिच पीपल, दे विल गिव, ओके, क्योंकि उन्होंने बेटी की शादी की है उस घर में, सो दे माई गिव, नहीं भी दे सकते हैं तो कुछ जोड़ तोड़ के इधर उधर से करके लोन वोन लेके वो गाड़ी दे देंगे। अब ये जो बंदा है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लगातार डाउरी आए या कुछ आए वहां से, कॉन्स्टेंटली समथिंग और द अदर, लाइक द होल फैमिली इज एक्सपेक्टिंग, नाउ दीज पीपल विल नॉट ग्रो, वाई, बिकॉज इनके सबकॉन्शियस माइंड ने बिलीव कर लिया है कि बाहर से चीजें आ रही है तो इसका अपना काम नहीं चलेगा, बिकॉज पूरे टाइम पैसा उधर से आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता, सबकॉन्शियस माइंड तो ये चीजें कैच कर लेता है ना एकदम से, दैट कांस्टेंट मनी फ्लोइंग, दैट एक्सपेक्टेशन वाला जो एंगल है सबकॉन्शियस माइंड वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इस घर में पैसा आना बंद हो जाएगा बिकॉज दे नो दैट मनी इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, इट इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम विद इन, मतलब इस परिवार में। तो यू डोंट नो, ये सारी चीजें हम कल्टीवेट कर लेते हैं बिना सोचे समझे, जैसे अगर कुछ ब्लेम गेम होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर कर लेता है उसको, नाउ यू विल बी सराउंडेड बाय एवरीथिंग वेयर यू विल बी ब्लेमिंग अदर्स, है ना, कोई भी चीज आप किसी भी तरफ व्हेन यू फोकस योर एनर्जी, that thing will expand, that if you constantly keep thinking that my job has a problem and my colleagues are like that, I'm always burdened with a lot of work, I'm responsible, तो मुझको काम बहुत मिलता है ऑफिस में, मेरा काम ही नहीं खत्म होता, अब आपको और ज्यादा काम मिलेगा, अब आपको और बर्डन किया जाएगा, वाई, बिकॉज यू अट्रैक्टेड दैट, है ना, अगर आप ये बोलते थैंक यू दैट माई वर्क इज गोइंग सो स्मूथ एंड ईजी, लाइफ इज ब्यूटिफुल ईजी एंड एफर्टलेस, ये मैंने आपको इतनी बार एफर्मेशन लिखवाई है, बोली है, बोलने को बोली है,
दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल, इजी एंड एफर्टलेस। अब आपका वो हर जगह, आप किसी के घर जाओगे वहां पे भी ब्यूटीफुल, इजी एंड एफर्टलेस रहेगा। आप ऑफिस में रहोगे वहां पे भी ब्यूटीफुल, इजी एंड एफर्टलेस रहेगा। आप कहीं और शॉपिंग करने जाओगे वहां पे भी आपका सब कुछ ब्यूटीफुल, इजी एंड एफर्टलेस होगा। आपका हाथ उसी चीज पे पड़ेगा जहां पे आपको, जो आपके लिए है ना। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क। सो हमको अपने थॉट प्रोसेसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एंड ऑलवेज से दैट यू नो माई वर्क इज ब्यूटिफुल, आई एम गिविंग द वर्क दैट आई लव एंड एंजॉय। करना तो पड़ेगा ना, इनिशियली डेलिबरेटली करना पड़ता है कुछ टाइम तक। जैसे मुझे भी बहुत डेलिबरेटली मैं शुरू शुरू में करती थी, है ना, बिकॉज ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब हैं, तो शुरू शुरू में आप डेलिबरेटली करो। उसके बाद ये आदत पड़ जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना करीब 3 महीने में एक्सेप्ट करने लग जाता है कोई भी नया थॉट, अगर आपने कंसिस्टेंटली रिपीट किया हुआ होता है तो। अगर आप रिपीट नहीं करते हो तो नहीं होता है। लाइक डॉक्टर जो डिस्पेंजा, पूरी की पूरी उनके सारे लेक्चर्स में सिर्फ एक वर्ड होता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट, क्योंकि सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कंसिस्टेंसी से होती है। और बल्कि वो धीरे धीरे बोलते हैं कि धीरे धीरे एज यू गो हेड इन लाइफ, तो आप अपना टाइम भी स्ट्रक्चर, टाइम वही रख लो। जो आप जैसे मेडिटेशन का टाइम वही रख लो, जब आप ग्रैटिट्यूड का टाइम करते हो वही रख लो, अगर आप विजुअलाइजेशन का टाइम करते हो तो वही रख लो, उसी जगह पे बैठ के विजुअलाइज करो। तो वो मतलब उस लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी बोलते हैं, और वो कहते हैं उसकी वजह से बहुत जल्दी डिफरेंस आएगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत फटाफट होती है इफ यू कीप द टाइम सेम, है ना। वो 66 डेज नॉर्मली ऐसे कहते हैं, तो कहते हैं उससे भी जल्दी हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में और एक ही टाइम पे करते हो तो। सो इसका मतलब है हम अपने दिमाग को नॉन रेजिस्टेंट बना रहे हैं, बना सकते हैं, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना, लेकिन करना तो पड़ेगा। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्लीपिंग राइट नाउ एंड लिसनिंग टू अस लेटर और skip a session, the books cannot be skipped at all. The books cannot be. So maybe they will listen to us later, but सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, और उसको अप्लाई करना। बिकॉज लॉ है ये नॉन रेजिस्टेंस, कि न टाइम लगता है न देर होती है ना। देर इज नो डिले इन द realm ऑफ द यूनिवर्स, एंड विथ हिम एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये तो मेरा वाला एफर्मेशन था ही, that God is never too late and does not need time, ये वाला था ना, that God does not need any time like to answer your prayer, and is never too late, with him all things are possible। तो मेरा चैप्टर नंबर 2 में से जो 100 वो था, वो ये वाला था। और कल वाला तो मैंने आपको कल शाम की सेशन में लिखवा ही दिया है, जो कल वाले चैप्टर में था, है ना। I seem to be at peace with myself, with all living beings, and with the world. So that was what कल वाला मेरा affirmation था, जो हमको 100 बार बोलना है। तो इस तरह से इतनी ब्यूटीफुल चीजें हैं, जब इस तरह से सोचेंगे तो लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगी। वी आर काइंड ऑफ डन। आप ये वाला यहाँ तक पढ़ लो, लक्ष्मी टिल हर सेल्फ एंड चाइल्ड। Yeah. Mothers often Mothers often unconsciously attract illness and disaster to their children by continually holding them in thoughts of fear and watching for symptoms. For example, a friend asked a woman if her little girl had the measles. She replied promptly, "Not yet." This implied that she was expecting the illness and therefore preparing the way for what she did not want for herself and child. या सो वेन एवर इसमें लिखा, क्योंकि मदर्स थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं जब अपने बच्चों की बारी आती है ना। जैसे बच्चा अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का उसको फीवर हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो एक्सट्रीम सोचना, ये खा लो, अब ऐसे कर लो, अब वैसे कर लो। द चाइल्ड इज नॉर्मल, जस्ट गिव हीलिंग प्रेयर्स। उस पे एक गोल्डन लाइट, एक पूरी एनवेलोप कर दो उस बच्चे के आसपास, कि जो हीलिंग लाइट है, एक एक सेल में उसकी पेनिट्रेट करो अपने फोकस और अटेंशन से, है ना, कि उस बच्चे की बॉडी में बिल्कुल फोकस और अटेंशन से आप हीलिंग को एक्टिवेट करो। हीलिंग उसके अंदर है, जिसमें लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस के साथ हीलिंग होती है। मतलब ना टाइम लगता है, गॉड इज नेवर लेट, है ना। उस बात को याद करके, वो इतना पावरफुल स्टेटमेंट था, तभी मुझे लग रहा था कि दिस इज टू बी रेड 100 times एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई हैव टू रिमेंबर दैट गॉड नेवर नीड्स टाइम एंड इज नेवर टू लेट, विथ हिम ऑल थिंग्स आर पॉसिबल।
तो जिंदगी में ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो अपने बच्चे को अगर हील करना है, सो जस्ट पुट दैट दैट कॉन्सेंट्रेटेड गोल्डन लाइट ऑफ हीलिंग, गॉड्स हीलिंग, penetrate that into every cell of your child's body, and thank the God that thank you for the perfect healing and the robust health of my child. This way, we will be able to recover the child from the illness. Not that way, खाना खा लो, बीमार है, मैं क्या करूँ, कोई फोन आया तो पता नहीं इसको सुबह से बुखार है। क्या जरूरत है प्रोपोगेंडा करने की ऐसी चीजों का, है ना? अपने हीलिंग प्रेस दो और बोलो ही मत ये वाली चीज। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि फ्रेंड ने बोला अपनी उसकी बेटी के बारे में, छोटी बेटी थी, तो एक फ्रेंड ने बोला तुम्हारी बेटी अभी ठीक है, उसको मीजल्स तो नहीं हुए हैं ना? मे बी मीजल्स का सीजन चल रहा होगा या जो भी है, किसी रीजन से ही पूछा होगा ना फ्रेंड ने कि तुम्हारी बेटी को मीजल्स तो नहीं हुए, तो कहती है नॉट येट, मतलब अभी तक तो नहीं हुए। अभी तक नहीं हुए का मतलब क्या होता है? अभी तक नहीं हुए मतलब मैं होने का वेट कर रही हूँ, है ना? तो सबकॉन्शियस माइंड इस एसेंस को कैप्चर कर लेता है that this is how it is. So healing, otherwise everything can happen with a non law of non resistance. और ये लॉ है, लॉ को तो कोई चाह के भी नहीं बदल सकता। इसीलिए उस लॉ को हमारे तक फ्लो होने के बीच में जो ब्लॉकेज आया हुआ है, जो डैम हमने बनाया हुआ है हमारे दिमाग से, वी नीड टू शेड इट। एंड आई एम श्योर दैट फ्लोरेंस कोवलचन बहुत अच्छे से हमारे उस दिमाग के वॉल को शेड करेंगी। ओके, बाकी का हम ये कल करेंगे। थैंक यू सो मच लक्ष्मी फॉर रीडिंग एंड Thank you, ma'am. कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। Thank you. Ma'am, one question. If someone asks such question, instead of telling not yet, so how can we answer them? ओ माय डॉटर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, ये छोटा मोटा है, विल हील टुडे। सब हो जाएगा, Yeah. सब अच्छा है। अदरवाइज शी इज एक्टिव, शी इज ईटिंग वेल, ऐसी बातें कर लो। Yes, ma'am. There is a statement called fake it till you make it. It basically just means that align your words and thoughts with the manifestative state, whatever it is. That is what it means. Faking till you make it, fake it till you make it. So you don't have to just say everything is absolutely okay. Everything will be perfect. Okay. Details you have to explain only to the treating doctor. कि ये हो रहा है, फिर वॉमिट हुई थी, फिर ऐसे हुआ था, yesterday the fever, only to the treating doctor। और किसी को कोई सिचुएशन बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जैसे ही आपने वर्ड देखा, बिकॉज इमोशनलाइज करेंगे ना, नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी इमोशनलाइज होती हैं। इमोशनलाइज करते ही यू हैव अट्रैक्टेड मोर ऑफ दैट इनटू योर लाइफ। So this is where the problem is. People discuss illnesses at length and I'm just like, I tell them, please stop. मैंने बताया था ना मेरे ऑफिस में देयर वाज समवन कॉन्स्टेंटली, मम्मी बीमार, अभी भी चल रहा है उनका। बीच में मैंने ठीक किया था, दोबारा से मम्मी बीमार है, मम्मी बीमार है, बोल बोल के बाय गॉड वो तो सुबह चैंटिंग होती थी इस वाले वर्ड की। एंड माय मदर फेल इल, यू नो दैट आई अट्रैक्टेड दैट इन माय लाइफ बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली इन दैट एनवायरमेंट वेयर शी वाज चैंटिंग इट, आई थिंक मोर देन 108 टाइम्स इन अ डे। कोई भी पूछता था ना, हाय हाउ आर यू, बस यही ठीक है, अभी तो आई एम कमिंग रेगुलरली, मम्मी बीमार है ना, अच्छा ये वाला तुम, अब मैं ऐसे पूछती थी। मैंने कहा सोनू व्हाट फूड आर यू कैरिंग टुडे, आई मीन लाइक आई ऑलवेज डू दैट। सो शी वाज लाइक अरे कहाँ, आज तो मैंने बस खिचड़ी बनाई, वो मम्मी बीमार है ना तो उनके लिए भी बनाती हूँ। एंड आई लाइक ओ गॉड, एवरीथिंग इन हर लाइफ इज रिलेटेड टू दिस वन सेंटेंस ओनली। देन आई स्टार्टेड सेंडिंग, द मोमेंट शी वुड से ये वाला सेंटेंस, आई वुड से she is recovering day and night. Then I wrote it for her and I said, this is what you have to chant from today. You know, then because वो तो हमारी जर्नी में नहीं है, बट मैंने उनको पावर ऑफ वर्ड्स और पावर ऑफ थॉट समझाया और मैंने कहा नाउ एवरीबडी हु इज आस्किंग यू दैट व्हाई हैव यू ब्रॉट खिचड़ी, व्हाई डिड यू कम लेट टू ऑफिस, व्हाई डिड यू डू दिस, वेवर यू हैव टू से दैट माय मॉम्स रिकवरिंग सो फास्ट, दैट वे। तो अब वो सेंटेंस आया उनका, तो अब नाउ वी आर सिटिंग इन डिफरेंट ऑफिसेज, अभी फिर से वही चैंटिंग शुरू हो गया है। तो पावर ऑफ एसोसिएशन चला गया है ना। मैं मेरे साथ रहते तो मैं तो अलाउ नहीं करती हूँ किसी को। फॉर मी ओनली ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड विक्ट्री, देर इज नो फोर्थ ऑप्शन इन लाइफ। सो दिस इज वॉट आई मेड क्लियर। सो आई थिंक यूनिवर्स ने ही हमको अलग अलग ऑफिस में बिठाना शुरू कर दिया। इनका एनर्जी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है हमारी। मेरी एनर्जी में कोई आता ही नहीं है। रोंदू पीपल नेवर आई होता ही नहीं है। दैट पर्सन गेट्स, उसकी मीटिंग ही कैंसिल हो जाती है हमारी। सो बिकॉज, एंड आई एम श्योर सेम थिंग वुड बी हैपनिंग विथ यू।
So because where you're in that energy of 500, 600, 700, you cannot attract people who are 100 and 200 and 50 and 60 in your environment. You will not. This is raw energy repulsion होती है. So आप चाह के even if you try to meet that person, it will not happen. वो person आ ही नहीं पाएगा आपसे मिलने. और अगर आ गया जबरदस्ती कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाएगी, बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसे ऐसे दूर कर रही है उनको. एंड एनर्जी के ऊपर कुछ भी नहीं है. एनर्जी इज दैट गॉड्स एनर्जी, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. So that is how it actually works. Okay, so just be like change your statement and your mental chatter, even if it is towards somebody. जैसे आपको लग रहा है कि अच्छा उसकी जॉब या उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, just keep saying that suppose कोई राहुल है, Rahul's business is escalating day in and out, it is increasing, कितना बढ़िया मस्त बिजनेस चल रहा है, इतना बड़ा क्लाइंट मिला, इतने आराम से पैसे आ रहे हैं. ये वाली एनर्जी की वाइब्रेशन आप भेजो. ये नॉन रेजिस्टेंट है और ये फट से उसकी लाइफ में जाएगी. एंड यू विल सी दैट दैट पर्सन विल. यही तो हम करते हैं ना अपने मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस में. हम फोकस करते हैं ना, फोकस करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ, उसकी फोटो उठाते हैं ताकि हमारी एनर्जी स्कैटर्ड ना हो. इस फोटो का मतलब ये होता है, अगर कोई भी एक्सरसाइज आप फोटो के साथ कर रहे हो, है ना, या मन की आंखों से आप ये सोच रहे हो कि आपके सामने वो इंसान बैठा हुआ है, सो उस फोटो में पूरी एनर्जी हमारी केंद्रित है, पूरी एनर्जी इज फोकस्ड टुवर्ड्स दैट वन पर्सन. एंड नाउ वी आर सेइंग दैट दिस पर्सन इज सो जॉयफुल, सुपर हैप्पी, हैज अ ब्यूटीफुल कंपेनियन, लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, लव एंड लाफ्टर. और ये एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग सो एंड सोज पर्सन लाइफ सो गुड. इसका बिजनेस दिन रात बढ़ रहा है, ये हो रहा है. और अपने मन की आंखों से, कानों से उसकी आवाज सुनो, वो आपको बता रहा है ना. ये सब हम अपने विजुअलाइजेशन में करें. उस पर्सन को पता भी नहीं है कि हम उसको ये वाली एनर्जी भेज रहे हैं. हम अपने मन की आंखों से देख रहे हैं कि वो आपको बता रहा है कि मुझे बहुत बड़ा क्लाइंट मिला और मुझे कल 5 लाख की पेमेंट आ गई, आई एम सो हैप्पी. और एक और प्रोजेक्ट मिल गया, उसकी भी पेमेंट ट्यूसडे को आ जाएगी. They have already taken my bank details and I'm super happy that my business is running, and suddenly 2 such big clients have come into my business. और अभी तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही 5 लाख की आई है, अभी तो उनके 50 lakhs और ड्यू है. आई एम सुपर हैप्पी एंड लाइक दैट वे. सो ये आप फोकस कर रहे हो ना उनकी तरफ, वो भी फोटो फोटो भी उनके सामने. और फिर उसके बाद मैसिव थैंक्स देना है. थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स. थैंक यू कि राहुल का बिजनेस दिन रात सुबह शाम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल. थैंक यू यूनिवर्स. हो गया बस, है ना. अब उसका बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, हकीकत क्या है हमको सोचना ही नहीं, हम तो थैंक यू बोल रहे हैं उसका बिजनेस बढ़ने के लिए. अब ये वाली एनर्जी जो आपने उस पर्सन की तरफ डायरेक्ट की है, केंद्रित की है, दैट पर्सन विल पेनिट्रेट हिज लाइफ एंड यू विल सी वेरी सून ही विल कम अप विथ some kind of a great breakthrough, and very soon. And God needs no time and is always before time, is never late. And with God, all things are possible. So this is how we have to focus and concentrate. Somebody is ill, you have to give healing energy to that person. Just think of that. उसकी फोटो, उसकी वो कैसा दिखता है, सामने मन की आंखों से सोचो और उसको इतना सैचुरेट कर दो कि वो बहुत अच्छा हील हो रहा है, हो गया है, वो घूम रहा है, फिर रहा है, मजे कर रहा है, बॉडी इतनी हेल्दी है. वो आपको बता रहा है दैट माई बॉडी इज आई एम एब्सोल्युटली ओके नाउ. मुझे तो पता भी नहीं कि मुझे क्या हुआ था एंड कैसे हो गया. आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन right now, I'm totally healed, I have healed on my own and so fast. Even doctors were surprised. वो लोग बोल रहे थे कि ये तो miracle हो गया, है ना. ऐसी चीजें सोचो. More you think like that, so law of non-resistance will provide that for you, है ना. And you will see that now that will happen very very soon from your mind's eye. आपने जो एनर्जी डाली है वो एनर्जी ऑलरेडी उसकी बॉडी में पेनिट्रेट कर गई है. एनर्जी डज नॉट टेक टाइम, है ना. आप यहाँ पे बैठे हुए हो, न्यूयॉर्क में कोई बैठा हुआ है, आप यहाँ से वहां पे इसी वक्त बिना टाइम के एनर्जी, इसी को तो हम टेलीपैथी बोलते हैं ना, कि एकदम से टेलीपैथी में भी तो टाइम कहाँ लगता है. अगर मैंने जैसे ही सोचा, अभी किसी की बात की, मैं नीचे जाऊंगी अभी, तो मुझे वो इंसान सामने मिल जाएगा. Why? Because I attracted it, because I was thinking about it, and then I'll say कि ये मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी, कि मैं ऐसे ही करने वाली थी. इतना ज्यादा होता है मेरे साथ. लाइक इट हैपेंस विद माय क्लाइंट्स, सो आई जस्ट थिंक दैट मुझे उनका फॉलो अप लेती हूँ, कैसा चल रहा है, ब्लड शुगर ठीक हो गई है, ये सब. और एकदम से उनका फोन आ जाता है ये कहने के लिए कि माय ब्लड शुगर इज कम सो मच. सो इतना ज्यादा कोइंसिडेंस होता है कि आप टेलीपैथी में कुछ भी चीज फोकस करते हो और वो हो जाती है. इस तरह से आप सोचो दैट यू हैव अट्रैक्टेड दैट person's call. So use this energy and this law to heal, bless and prosper.
That is how we are supposed to use our life. So just that, है ना, and everything else will be taken care of. कहते हैं ना वो टेंट में से, जो टेंट में होता है ना, साइड में टेंट में 5 वो लगते हैं, कीले लगती है, लेकिन वो जो बीच वाला टेंट होता है ना, जो खड़ा रहता है, उसकी वजह से टेंट कभी नहीं गिरेगा। तो अपने बीच वाला जो रॉड होता है ना टेंट में, उसको हमेशा ठीक खड़ा रखो, उसको वो रखो, दैट मीन्स वो आपकी एनर्जी है, उसको खड़ा रखो, तो वो टेंट कभी नहीं गिरेगा। वो वाले जो साइड साइड की जो कील निकल गई हैं, दे कैन गेट फिक्स्ड, है ना, प्रोवाइडेड दिस इज स्टैंडिंग टॉल। जो बीच वाला जो रॉड होता है टेंट में, उसको बस सॉलिड रखो अपना, है ना, मतलब टेक केयर ऑफ योर एनर्जी, योर वर्ड्स, योर थॉट्स, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ इन योर लाइफ। आपकी प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, आपकी हेल्थ भी बहुत मस्त रहेगी, you will enjoy your life will be breathtaking or inspiring, exciting, fun, confident, love, blessings, everything, amazing people will flow into your life, and everything will be perfect, harmonious, healthy, है ना, that is how it is. हाँ जी, thank you so much, bye bye, lots of love. Thank you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank you. ma'am. Bye.